الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے معاملے پر 2 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات قبول اور 13 کے مسترد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، جس پر حامد خان نے بتایا کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ گیلپ کا موجودہ سروے بدلتے منظرنامے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مقبولیت کی دوڑ میں سراج الحق کی سپیڈ تیز تر ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین پیچھے رہ گئے۔ سراج الحق تیسرے نمبر پر نہیں، قابلیت اور امانت و دیانت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ پنجاب میں امیر جماعتیں تیسرے قبول ترین لیڈر بن گئے، جبکہ قومی سطح پر صرف 1 پوائنٹ کے فرق سے چوتھے مقبول لیڈر ہیں۔ اگلے 15 دن میں اندازہ یہی ہے کہ امیر جماعت اسلامی قومی سطح کی 3 بڑی شخصیات میں شامل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار اور صحافی انصار عباسی کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ فائنڈنگز ہیں گیلپ کے سروے کی، جو کہ آج انہوں نے جاری کیا، اور اس سروے میں بہت سٹارٹلنگ قسم کی انفارمیشن ہے، اور اوور آل پھر اس سروے میں ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز، سراج الحق صاحب، بلاول زرداری بھٹو، سعد رضوی صاحب، مولانا فضل الرحمان، جہانگیر ترین، خالد مقبول، ان کی بھی پاپولیرٹی کے حوالے سے اس سروے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں، اور یہ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ جو پولیٹیکل لیڈرز کی جو مقبولیت کی جہاں تک بات ہے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی، وہ بڑی پنجاب کی حد تک تو بہت حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں موسٹ پاپولر جو ہیں وہ لیڈر آج میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کی جو مقبولیت کی پرسنٹیج ہے وہ 60% ہے، جبکہ اس کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت کا پرسنٹیج آتی ہے جو کہ 53% ہے۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سراج الحق آپ کو نظر آئیں گے کہ تیسرے موسٹ پاپولر لیڈر پنجاب میں نواز شریف اور عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ سراج الحق صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو ان کے بعد آتے ہیں، ان کی جو پرسنٹیج ہے مقبولیت کی پنجاب میں وہ 34% ہے۔ اس کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ رضوی صاحب ہیں، ان کی 31% ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، ان کی 27%، اور جہانگیر ترین صاحب کی 21%۔ یہ پنجاب کی حد تک میں نے آپ کو لیڈرز کی مقبولیت کا بتایا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوور آل جو پاکستان جو لیڈرز کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اوور آل جو جون میں جب سروے ہوا تھا، جون 2023 میں، تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو پرسنٹیج تھی وہ 60% ان کی مقبولیت تھی اوور آل پاکستان میں، اور وہ اس وقت جس وقت جون 2023 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت تھی عمران خان کی 60% کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور وہ تھی 36%۔ 36% میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت تھی۔ یہ میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دسمبر میں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ 60% سے کم ہو کے وہ 57% پہ آ گئی ہے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ 36% سے بڑھ کے جون 2023 36% سے بڑھ کے دسمبر 2023 میں 52% اب ان کی ہو گئی ہے۔ اور پھر ان میں اور عمران خان کی اوور آل پاکستان بھر کی جو مقبولیت ہے اس میں 5% کا فرق ہے۔ مطلب ہے کہ پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ابھی بھی 5% with 57% پاپولیرٹی ریٹ وہ میاں نواز شریف صاحب سے ابھی بھی آگے ہیں، لیکن پنجاب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 60% میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے اور 53% عمران خان صاحب کی۔ اب ان کے بعد اب دوسرے لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ جی اوور آل پاکستان میں نمبر 1 موسٹ پاپولر عمران خان 60%، نمبر 2 کے اوپر آگے میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب 57%، میاں نواز شریف صاحب سیکنڈ نمبر پہ 52%،
तीसरे नंबर पे ओवरऑल जो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी का रेट है पॉलिटिकल लीडर्स का, बिलावल भुट्टो साहब का है 35%। और फिर दोबारा एक बड़ा मतलब है कि ये एक इंटरेस्टिंग मतलब है कि परसेंटेज है कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर, जो कि पंजाब में तीसरे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान में वो चौथे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बाद चौथे मोस्ट पॉपुलर लीडर जो हैं वो सिराजुल हक साहब हैं विथ 34% उनकी पॉपुलैरिटी रेट है। हैदराबाद दरियाए बंद कोटरी के रिहायशी का प्रेस क्लब पर खवातीन बच्चों के हमरा एहतजाज। कासिमाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात कोटरी दरियाबंद के इलाके में कार्रवाई करते हुए घरों में दाखिल हो गई। सोए अफराद के घरों में घुसकर फायरिंग करके चादर चारदीवारी का पामाल किया। खवातीन बच्चों पर तशद्दुद करते हुए 5 अफराद को अपने हमरा बेगुनाह लेकर चले गई। घर से 4 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान भी लेकर चले गई। पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की आला हुकाम से पुलिस की गुंडागर्दी पर नोटिस का मुतालबा। 2:30 बजे पुलिस छापो अची असांजा सुता पिया, सुतलन जे मथां अची बीठा, असांजा दहशत में रड़ियुनि जो कयूं त उन्हनि फायरिंग कई आहे। असां वटि उनजो सबूत मौजूदु आहे। 2 गोलियूं फायरिंग कई अथऊं, ॿियूं गोलियूं हली वियूं आहिनि, 2 गोलियूं असांखे उते हथ अची वियूं आहिनि। ठीकु आहे। हिकु आहे नवाब सोलंगी, मुराद सोलंगी, शरीफ सोलंगी, कुर्बान सोलंगी, शफ़ी मोहम्मद सोलंगी। महिरबानी करे असांजा बेगुनाह बेख़ता असां सां हैदराबाद पुलिस असां सां तशद्दुद करे दरियाबंद कोटरीअ जा दरियाबंद पुल जे हेठां वेठा आहियूं। ग़रीब असांखे न जुगो आहे न असांखे घर आहे। बेगुनाह मुंहिंजो मुड़ुसु हाई कोर्ट सखर में जज आहे दुर्मामन सांगी, मुंहिंजो मुड़ुसु उनजो गार्ड आहे। मुंहिंजो 3 ॾींहं आयो आहे छुटी करे, मुंहिंजी राति मुड़ुस खे पुलिस खणी वई आहे। 3 वई उन्हनि खे छॾे वई, बकाया ॿिया खणी वई आहे। हिकिड़ी मोटरसाइकिल कागज़नि समेत खणी आहिनि। बराए महिरबानी के असांजा छोकिरा ज़ाहिर कनि। असां ठेला हलाईंदा आहियूं, मज़दूरियूं कंदा आहियूं, राति जो 2:30 बजे करे तशद्दुद करे असांजा छोकिरा खणी आहिनि। बस ख़बर न आहे, चए ॾोहारियो तव्हां ॾोह जे कढूं था, माण्हू था जाचा कयूं, असां पंहिंजो जाचा कंदासीं। जाचा करण जे ईअं बेगुनाह माण्हू खणी हलिया विया आहिनि। जाचा खे जेके हुजनि उहे खणी वञनि, सम्झो साईं, जेके हुजनि उहे खणी वञनि न। बेगुनाह छो था ठेलनि वारा छोकिरा खणी वञनि। मोटरसाइकिल 4 मोटरसाइकिल फायर कया अथऊं बाक़ाइदे, पुलिस वारा हुया। हिकिड़ो कोटड़ी जो सिपाही आयो, हुन सां ॿी हैदराबाद जी पुलिस आहे। बेगुनाह बेख़ता असांजा बच्चा खणी निंड पाए हिननि गोलियूं हलाए छॾियूं। असां गोलियूं खयूं आहिनि सुबुह सां, सबूत त खणी आया आहियूं। असांजा 5 माण्हू मोहम्मद शरीफ, अबा नवीद, नवाब, अबा शफ़ी मोहम्मद मुराद, कुर्बान, इहे 5 माण्हू असांजा खजी विया आहिनि। हिन महिल त रड़ंदा रोईंदा था वधो, असांजो को ज़ाहिर न आहे। कोटड़ीअ वारी अस्पताल उन ताईं पुगाऊं थाणनि त उन्हनि बि असांखे थाणनि वारनि बि न ॾिसियो। असां वटि न आहे, मथनि ते था रखूं, अमल करे कयूं त बि मूंखे ज़ाहिर न करणो। हे नंढा बच्चा ॾिसो, वीचारा बच्चा रड़नि था रोइनि था। हिन महिल कोई वाही न आहे, इलाज न आहे असांजो। इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तलवंडी चौकी के ASI मोहम्मद आजम ने बदनामी ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुल्जिम की शनाख्त रांझा के नाम से हुई। रांझा नामी मुल्जिम के कब्जे से 1200 ग्राम मंशियात बरामद की गई। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टर्स ने अवाम की जिंदगियों से खेलने का कारोबार खोल रखा है। अताई डॉक्टर्स के खिलाफ हेल्थ केयर कमीशन सिंध के अफसरान की जानिब से कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके गुलजार कॉलोनी और बेलाल कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन करके मुतअद्दिद क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, हम इस वक्त बिलाल कॉलोनी के एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पे तकरीबन यहाँ पे इतने पेशेंट्स जिनकी रेशो वो जिना हॉस्पिटल में रिपोर्ट होती है, जहाँ पे गलत मेडिसिन और गलत जो है उनकी जहाँ पे कंसल्टेशन की जाती है। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी हम जिस क्लिनिक पे मौजूद हैं वो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों का जो है वो इलाज कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारी रैकी होती है। हम दिन के टाइम में, शाम के टाइम में, रात के टाइम में इनको बार बार विज़िट करते हैं और मकसद होता है कि इनकी रैकी करना। इलाका मकीन से पूछते हैं, कुछ लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं। जैसे इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये नॉन क्वालिफाइड है,
कुछ पेशेंट्स की भी तरफ से इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट्स आई हुई थी, लेकिन ये चूँकि ख़ुद अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपना डाटा हमें फ़ोन पर प्रोवाइड किया, तो उसमें इन्होंने जो PMDC नंबर प्रोवाइड किया उसमें इनका अपना नाम तो मैच हो रहा है, लेकिन जो इन्होंने अपने वालिद साहब का नाम बताया वो मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपसे रब्ता कर रहे थे, आपने कॉल बंद कर दी है। अब मुझे ये बताइएगा वालिद साहब का आपके नाम क्या है? सॉरी, आप अपने वालिद साहब का नाम बताइएगा। डॉक्टर साहब क्या है? सुरेश कुमार। वालिद साहब का नाम सुरेश कुमार है? जी जी। और आपका अपना नाम क्या है? डॉक्टर रोशन। डॉक्टर अभी तो आपने बताया था अकबर अली हाशमी। अकबर अली हाशमी डॉक्टर एक्चुअली वो ऑपरेट में है। अच्छा, वो कॉल नहीं उठा रहे। डॉक्टर रोशन बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस आप करते हैं? जी जी, मैं भी 2-3 डॉक्टर होते हैं। ठीक तो है। एक डॉक्टर आउट ऑफ सिटी है, बाकी डॉक्टर अकबर ऑपरेट कर रहे हैं और मैं भी होता हूँ यहाँ पे। जबरदस्त। अच्छा, ये जो अकबर अली हाशमी साहब थे डॉक्टर साहब, जी जी। इनके वालिद साहब का नाम क्या है? यार इनके वालिद साहब का नाम मुझे आइडिया नहीं है। अभी इन्होंने मुझे बताया था अली हाशमी। सिर्फ कंफर्म कर लेंगे, मुझे कंफर्म कर देंगे आप? अच्छा चलो, मैं कॉल जैसे कंफर्म होता है मैं बता देता हूँ आपको। और आप इस क्लिनिक पर कोरंगी में जो क्लिनिक खुली हुई है, यहाँ आप भी आते हैं क्या? जी जी, मैं भी आता हूँ, डॉक्टर अकबर भी आते हैं और दूसरे डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, आपका अपना नाम बताइएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर रोशन। डॉक्टर रोशन। जी जी। अच्छा, डॉक्टर रोशन, वालिद साहब का नाम क्या है आपके? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, ठीक है। जी जी। आपका जो PMDC नंबर है वो बता दें। डॉक्टर एक्चुअली PMDC नंबर याद नहीं है, अब वो सर्टिफिकेट में होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर बता दें। हेलो। जी जी। जी सुरेश। NIC वगैरह याद नहीं है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। अच्छा डॉक्टर रोशन, देखें इससे पहले जो आपने हमें डिटेल्स बताई थी अकबर अली साहब ने, वो PMDC नंबर भी गलत था, ठीक है। जी जी। उस पे अकबर अली हाशमी तो नाम आ रहा है, लेकिन वालिद साहब का नाम चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा। और अब वो खुद राब्ता भी नहीं करना चाह रहे हमसे। नहीं, वो एक्चुअली ऑपरेट में है, जैसे निकलते हैं मैं बोल दूंगा, आपसे राब्ता करें। ठीक है रोशन साहब, देखें हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। एक बंदा अपने वालिद साहब का नाम सोचने में इतना टाइम लगा रहा है, फिर उसने नंबर आप 10 मिनट से मुझे बातें घुमा कर कहीं कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी मैं भेज रहा हूँ चीज़ें, सब कुछ भेज रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, फिर वो ऑपरेशन करने चले गए, फिर उसके बाद आप अपना राब्ता कर रहे हैं और आप अपना कोई क्रेडेंशियल नहीं बता रहे हैं। इस वक्त हम हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान के साथ है, वो उनसे पूछेंगे कि ये जो है क्लिनिक किस बिना पे सील किया गया। तो सर यहाँ पे क्या आपको शिकायत? यहाँ पे शिकायत ये है कि ये बाई क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रोपैथ हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल OPD की, यानी एज़ पर लॉ जो है, या एज़ पर जिसे कहते हैं क्वैकरी की जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 35, उसके मुताबिक ये बियॉन्ड स्कोप काम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोपैथ्स की जो है अपनी कोई काउंसिल भी नहीं है, ये फुल देख लें एलोपैथिक सेटअप है, एलोपैथिक मेडिसिन जो है सब जगह मौजूद हैं इस वक्त। हो सकता है कि इंजेक्टेबल्स वगैरह भी हों, तो इस बेस पे ये अंडर सेक्शन 35 क्वैकरी प्रैक्टिसेस हैं, इसको सील किया जा रहा है। आवाम को आप ये बता रहे हो कि यहाँ जनरल फिजिशियन बैठा है, गायनेकोलॉजिस्ट बैठा है और सोनोलॉजिस्ट बैठा है, हालांकि बिठा के आपने एक LHV रखी है। अब आप ये कागज़ पे डिटेल्स हम लिख कर दे रहे हैं, इस कागज़ को नथा चढ़े सको, अदी ॾिसो नथा चढ़े सको तव्हां जे करे बिना। अदी मसलो इहो ना आहे, मसलो इहो आहे हाणे खां ना आहे, हे 3-4 सालनि खां हलाए थो। तव्हांखे ॿुधाइण लाइ घणा मरीज़ मरी चुका आहिनि, पर अदी माण्हू मरी चुका आहिनि। सियालकोट में थाना मुरादपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नौजवान को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाला सफा कातिल चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश को नाले में फेंक दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुस्तफ़ा अली की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में थाना मुरादपुर में पुलिस को 20 साला कमर शहजाद के अगवा होने की इत्तला मौसूल हुई। DSP सदर सर्कल बमा SHO थाना मुरादपुर टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और शाहिद इकट्ठे करने शुरू किए। SHO मुरादपुर ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 3 घंटे के दौरान तहकीकात करते हुए दानियाल नामी शख्स को हिरासत में लिया। तफ्तीश पर इंकशाफ हुआ कि दानियाल ने कमर शहजाद को साबिका रंजिश की बिना पर फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम ने कमर शहजाद की लाश को नाला पलखू में फेंक दिया था। पुलिस ने नाला पलखू से मकतूल की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरानों मुलाजमीन को सफाक कातिल को चंद घंटों में गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया।
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि तारीख में पहली बार पंजाब के सरकारी हस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आरफा क्रीम टावर में एक किताब की तकरीब रोनमाई में खिताब में किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद राना की इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि तारीख में पहली बार पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आरफा करीम टावर में एक किताब की तकरीब रोनुमाई में खिताब में कहा। इस मौका पर चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर, प्रोफेसर अतर मसूद, प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अजीज लोधी और दीगर अफसरान और मुख्तलिफ तालीमी दर्सगाहों के तलबा और तलबात ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, इंतहाई अहम मौजू पर किताब की लॉन्चिंग पर लिखारियों को मुबारकबाद देता हूँ। एक दर्सगाह की बुनियादी मकसद ही जदीद रिसर्च को फरोग देना होता है। पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रही है। तारीख में पहली बार पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया है। हमें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के उमूर में जिद्दत का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकतवर इकॉनमी का आज तक जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं पा सकी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मजीद कहा, निज़ाम की बेहतरी के लिए तब्दीली लाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ऐसी किताब को सुपर किताब कहना चाहिए। एसएसपी गोट की अनवर केथरान की हिदायत पर पुलिस का रूपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। SHO थाना दाद लगारी यासीन सोलंगी ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए थाना दाद लगारी के केस में मतलूब मरकजी मुलजिम इम्तियाज़ को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में मुलविस दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरवार SHO सदरुद्दीन लक की बेहतरीन कार्रवाई, सैयद काशिफ की चोरी की गई मोटरसाइकिल रिकवर करवा के असल मालिक के हवाले कर दी गई। कुछ रोज़ कबल नथु गबोल से नामालूम चोर सैयद काशिफ शाह की मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए थे, जिसके इत्तला मालिक ने थाना जरवार पर दी थी। मसरूका मोटरसाइकिल वापस मिलने पर मालिक ने SHO और उसकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। थर पार्कर के आवाम और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुश्तरका तौर पर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर गैर कानूनी शिकार को ख़त्म करके नायाब किस्म के जानवरों की नस्लकशी ख़त्म की जाए। थाना मीरपुर माथेलियो पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर एक औरत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार औरत और 2 फरार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सजावल ग्रिड स्टेशन के करीब गन्ने की खराब खड़ी ट्राली से सुजुकी पिकअप की टक्कर। हादसे में 24 साला खातून और मासूम बेटा मौका पर जांबाक हो गया, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल सजावल पहुंचा दिया गया, जहां पर उन्हें फर्स्ट एड दी गई, लेकिन जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उनको कराची रेफर कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर BBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। इस रंगीन तकरीब में तलबा तलबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाया। स्पोर्ट फेस्ट का इफ्तिताह डीन प्रोफेसर डॉक्टर जवाद इकबाल, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शरीफ और क्लब के जिम्मेदारान ने किया। प्रोग्राम के दौरान डीन साहब ने तलबा से मुखातिब होकर कहा कि इस तरह के खेलों के मुकाबले से न सिर्फ तलबा की जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर होती है, बल्कि इनमें टीम वर्क और बाहमी ताउन का जज्बा भी परवान चढ़ता है।